worldwide towards regionalism in the government, resulting is a widespread transfer of power downwards towards regions and communities since 1990s. वर्ल्ड में ये दिखाया जा रहा है, whatever the nations are there, एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड मिला है कि रीजनलिज्म मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रीजनलिज्म का मतलब क्या दिख रहा है, दैट लोअर डाउन में क्या किया जा रहा है, पावर इज डिवॉल्विंग, ट्रांसफर ऑफ पावर्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स रीजन्स एंड कम्युनिटीज सिंस. लेकिन रीजनलिज्म का मतलब कई चीज़ होता है. रीजनलिज्म का मतलब मैं आपसे बोलूँ जैसे आई सेड दैट राज ठाकरे साहब कर रहे हैं कि मराठी मानस एंड ऑल, तो रीजनलिज्म वो एक मीनिंग भी होता है. दैट इज आई सेड दैट फीलिंग ऑफ योर oneness, feeling of one kind of, I said that for the purpose you have created one reason. तो मराठी, महाराष्ट्र, तेलुगु, these are has been prepared on the basis of which language? Yes or not? So that is I said the regionalism. और एक regionalism separatism के form में भी होता है. Yes or not? Then one he has done earlier that the Bihar and UP the people are what I said that. So this regionalism is a negative. Is it clear? तो but यहाँ पे जो regionalism बोल रहा है, it is I said that decentralization. So there has been a significant trend worldwide towards regionalism in the government, resulting in a widespread transfer of powers downwards toward the region and community since 1990. साफ शब्दों में बोल रहा है कि decentralize, power को नीचे मुझे devolve करना, ऐसा ना? This process which involves the creation of new political entities, and bodies at subnational level and increase in their content and powers is known as devolution. इसका मतलब है कि सिंपली हमें नीचे में छोटे छोटे बॉडीज बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा ना? स्टेट गवर्नमेंट, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, ऐसा ना? वी हैव टू इंक्रीज द व्हाट आई सेड दैट डिफरेंट बॉडीज एट द सब नेशनल लेवल्स, ऐसा ना? तभी तो हम पावर को डिवॉल्व कर पाएंगे. आई सेड दैट द प्रोसेस involves the creation of new political entities and bodies at a subnational level and increase in their content and powers is known as devolution. Devolution has been characterized as being made up of three factors. One, I said that political legitimacy, decentralization of authority and decentralization of resources. Yes or not? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी तो आप जानते हैं कि अथॉरिटीज आर आई सेड दैट मूविंग डाउन टू द स्टेट. यस और नॉट? इसी को बोला जाता है व्हाट इज गवर्नेंस. इफ आई आस्क, रेज योर हैंड. या yes. Basic. Yes. Yes. Bottom up. Use of all of you are using so hard word, huh? मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और मैं लाइफ में सिंपलिसिटी देखता हूँ हमेशा. Modi government is talking so many times less government, maximum governance. Less government. तो गवर्नेंस कहीं भी हो सकता है. इट इज़ एवरीवेयर गवर्नेंस, एवरीवेयर इन योर हाउस, इन योर कंपनी, इन योर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एट एनी लेवल गवर्नेंस इज देयर. गवर्नेंस का मतलब ये होता है, पहला चीज़ आई सेड दैट इट इज़ आई सेड दैट
decision, I said that decision power in the form of decision making power authority in the form of hierarchy. First, what I said that decision making power authority in the form of, तो हायरार्की में किसी भी घर में भी जाएंगे तो आप क्या देखते हो, इट इज योर फादर, देन देयर इज अ मदर पॉसिबिलिटी, और वो फादर के ऊपर ग्रैंडफादर, डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी, यस और नॉट, एंड इन द फॉर्म ऑफ hierarchy, yes or not. In any company, in any organization, if you'll go, if any department of agriculture, department of ministry, there will be everywhere there is what? Hierarchy. Everywhere. In the private companies, in the any private institution, in the schools, hospitals, college, anywhere. There is a hierarchy of decision making power. But the most important, implementation of decision at each level of hierarchy. Implementation of, अब वो decision लिया and that has been guidelines has been given to the next, on the basis of the next one has taken the decision and then it does guidelines to the next, ये सब तो decision making power आ गया, yes or not, but implementation at each level, तो automatically आप जो चाहते हो वो मिलेगा, और आपको क्या बोलेंगे, yes tell me, governance, yeah, हाँ, Turkey's president is ruling his country in their way, and Indian government is ruling his country in their way. Governance is in both the countries. गवर्नेंस देखो, गवर्नेंस का मतलब मैंने आज तक यही समझा है, मेरा कोई पॉलिटी नहीं है ना पैड ऑप्शनल पढ़ाने वाला है, मैंने एक सिंपल वे में ये समझा, यदि मैंने मोदी ने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नेंस इन एवरीवेयर, इन पंचायती सिस्टम, पंचायत में भी गवर्नेंस है, वहाँ पे भी यदि जाता है तो वहाँ पर भी गवर्नेंस है, यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो, मैं बड़े इजी से कोई भी चीज़ लेता हूँ तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक द थिंग्स टू बी ईजियर। तो गवर्नेंस का मतलब आप किसी हाई टर्म्स के साथ जाएंगे, देखिए हमने क्या बोला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ एंड देन आई सेड मिस्टर हिटलर हैज सेड दैट फंडामेंटल राइट हैज बीन, व्हाट आई सेड दैट, breached, he has withdrawal from the people, so nobody should come to me and ask me for the sake of nation, उसने लॉ को ही चेंज किया, अंडरस्टूड इट, लेकिन क्या आप कहोगे वो इलीगल था या लीगल था, वो लीगल था या नहीं था, लीगल था या नहीं था, लीगल था या इलीगल, लीगल वो होता है जो वहां का हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ, दैट इज द लीगल, एंड ही हैज चेंज द लॉ, ही मेड द लॉ एंड अकॉर्डिंगली ही वाज फॉलोइंग, दैट इज लीगल, बट फॉर द अदर एस्पेक्ट्स इफ यू सी इट इज अनएथिकल, यस और नॉट। लीगल कहने का मतलब होता है कि आपने लॉ बना दिया उसके अनुसार से चलिए, दैट इज लीगल। अब ये क्या लीगल लॉ अनएथिकल है या एथिकल है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो मेरे कहने का मतलब है गवर्नेंस, मुझे एक आप लोगों को समझाना था कि आप कई बच्चे पढ़ते रहते हो लेकिन यूज़ नहीं कर पाते हो। गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस यही होता है कि फॉलो हो गया, बीच में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। चाहे आप यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी की बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, आई सेड दैट एनी काइंड ऑफ सीबीडी, हर एक जगह गवर्नेंस है, वहाँ पे दिक्कत होगी तो क्या हो जाएगा, बैड गवर्नेंस। गवर्नेंस वो नहीं है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, वो भी है जो सारे जगह हो रहा है, चाहे सोशल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, एनीवेयर, यस है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी डिसीजन ले और उसका फॉलो हायरार्की तक हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इट इज के लिए गवर्नेंस। तो मैंने सिंपल सा, मुझे मन किया बताने का तो आप लोगों को बताया, उसको एक्सेप्टेबल हो तो एक्सेप्ट करिएगा। सो हमने क्या बोला, devolution has been characterized as being made up of three factors: political legitimacy, decentralization of authority। तो authority का क्या है, authority has power to take decision, yes or not, decentralization of authority, and every authority has not the same resource to utilize, yes or not, they have different resource to utilize, yes, and there is also decentralization of what, resources। तो लेकिन फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये आपने पढ़ा भी होगा और बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन भी किया है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हियर मीन्स ए मास डिमांड फ्रॉम
below. For the decentralization process which is able to create a political force for it to take place. यदि मास डिमांड से आ रहा है कि आई नीड ए डिसेंट्रलाइजेशन, देन इट इज आई सेड दैट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. If Bundelkhand is asking for that, I need to be separated. Is it asking the decentralization? मुझे decentralize करो. Jharkhand, Chhattisgarh, and they have been made the state on the basis of what? On the basis of political legitimacy. On the basis of, क्योंकि plebiscite हुआ, उन्होंने आपस में बोला कि मुझे चाहिए लोगों का. अब ये लोग कौन थे, ये तो मेरी बात नहीं है, ये हम लोग नहीं बात करने जाएंगे, नहीं तो फिर तो इंडिया का चीरफाड़ होने लग जाएगा. अंडरस्टूड? तो हमने क्या बोला, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी शुड बी डिमांड फ्रॉम द बिलो. सो इट इज आई सेड दैट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हियर मीन्स ए मास डिमांड फ्रॉम बिलो फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस विच इज एबल टू क्रिएट ए पॉलिटिकल फोर्स फॉर इट. उनके लिए एक पॉलिटिकल फोर्स दे दे, अपना स्टेट का डिमांड दे दे, अपनी अथॉरिटी दे दे उनको, टू टेक प्लेस. इन मैनी केसेस डिसेंट्रलाइजेशन इज इनिशिएटेड बाय द अपर टायर ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट sufficient political mobilization for it at the grassroots level. Grassroots level पे डिमांड नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कर दिया. And in such cases the decentralization process often does not, ध्यान दे इधर, and in such cases the decentralization process often does not fulfill its, in such cases ऐसे decentralization अपने objectives को, in such cases decentralization process often, not surety, does not fulfill its objectives. Is it clear? इसमें बता रहे हैं, I said that emergency of, first option, emergency of powerful mass leader, emergence of powerful mass leader is essential to create subnational political entities and thus ensure successful devolution and decentralization. अब तो शायद आप पक चुके होंगे इतने देर में कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि it is out of the context, it is coming under falsifiability. The upper tier of the government should impose devolution and decentralization on the regional community by the law, और ये क्या है, और अदरवाइज कहाँ से, अदरवाइज कहाँ से भाई हैं, ये तो हिटलर वाली बात हो गई. Devolution to be successful requires a democracy in which there is a free expression of the will of the people at lower level and their active participation at the grassroots level. तो ये आपको क्या है लग रहा है, अभी देखते हैं आगे. For devolution to take place, a strong feeling of regionalism in the mass is essential. तो devolution के लिए ये तो नहीं बोला, devolution के लिए कई तरीके बताए, yes or not? लेकिन it is I said that for devolution to take place, a strong feeling of regionalism in the mass is essential. ये नहीं मेंशन किया गया है इस पैसेज में कि मास में essential है. Essential is means degree of certainty, yes or not? Certainty तो नहीं बोला कि रीजनलिज्म है, बट I said that not essential. Certainty नहीं है. So option number C. हाँ, हाई एक्सट्रीम वर्ड्स, जैसे मैंने बोला ना, कुछ चीज़ों मैंने याद कराया था, ऑलवेज, ऑल, एनी, नेवर, नन. ऐसे वर्ड जब भी आपको दिखे, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी. एवरी, एलिमिनेट नहीं, उसकी ध्यान देखनी है, क्योंकि लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें हो नहीं पाता है. किसी भी सिस्टम में एक्सट्रीम वर्ड्स को अचीव नहीं किया जा सकता. कोई भी सिस्टम कंप्लीटली नेवर डज एनीथिंग ऐसा हो सकता है, और एवरी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता ही हैज डन एवरीथिंग. नेवर और एवर कभी नहीं हो सकता. तो ये चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा. और धीरे धीरे आप कहीं पे भी जीएस के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो 6, 7, 8 क्वेश्चन तो आप इसी के बेसिस पर आप थोड़ा सा स्ट्रांग फीलिंग आ जाएगी. और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लास की वजह से आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी प्री क्लियर करने की पूरी. So the option number C is correct. हाँ,
Degree of certainty means I have talked to you probably, likely. ये word क्या है? Less certainty, शायद आपका selection हो probably, likely. लेकिन मैंने बोला certainly, surely, definitely. ये क्या बताता है? Essentially, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा. तो वो जहाँ I said that high level of what I said that वो हमें निगेट करना है, और ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया था. बोला था कि रीजनलिज्म एसेंशियल है, नहीं मेंशन किया. सो इट इज आई सेड दैट फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग.